Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to teach you chapter 2 of class 4th. Chapter name is The Northern Mountain Wall, means उत्तरी पहाड़ी की दीवार. So let's start. We shall first talk about the long mountain wall in the north. सबसे पहले हम उत्तर में जो लॉन्ग माउंटेन वॉल है उसके बारे में बात करेंगे. The northern mountains. The Himalayas are the biggest mountain ranges in the north and northeastern parts. As the name implies, him, ice, are a place of. Many Himalayan peaks remain covered with snow for most parts of the year. हिमालयाज नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं. जैसे नाम से ही पता चलता है, हिम, आइस, आल, प्लेस ऑफ मीन्स बर्फ का घर. हिमालय की कई ऐसी पीक्स हैं जो पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं. हिमालयाज हैव 3 माउंटेन रेंजेस दैट रन पैरेलल टू ईच अदर. दीज आर हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो एक दूसरे के साथ समानांतर चलती हैं. हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. लुक एट द नेक्स्ट पैरा. The high mountain peaks lie in the Himadri ranges. Mount Everest in Nepal is the world's highest mountain peak. The highest mountain peak within Indian territory is Kanchenjunga. The other important mountain peaks in India are Dholagiri and Nanda Devi. The world's second highest peak, K2, is situated in Jammu and Kashmir. It is part of the Karakoram range. ऊंचे पर्वत की चोटियां हिमाद्री रेंज में आती हैं. नेपाल में माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है और इंडिया में कंचनजंगा सबसे ऊंची पर्वत चोटी है. भारत में अन्य इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं धौलागिरी और नंदा देवी. वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है K2 जो जम्मू एंड कश्मीर में है. यह काराकोरम रेंज का पार्ट है. नाउ लुक एट द मैप ऑफ दिस चैप्टर. द हिमालयन माउंटेन्स रेंज स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश इन 2500 kilometers. As you know students, in the last chapter I told you about brown color of the map. Brown color shows to the northern mountains. Okay, look at the top. Here is second highest peak K2 situated in Jammu and Kashmir and its height is 8611 meters. And in Nepal, here is Mount Everest and its height is 8848 meter. It is the world highest mountain peak. Now look here in the map. Here is Kanchenjunga. It is the highest mountain peak of Indian territory and is located eastern part of Nepal on the border of Sikkim. Its height is 8586 meters and it is the third highest peak of the world. माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है जिसकी हाइट 8840 मीटर है. K2 जो जम्मू एंड कश्मीर में वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी हाइट 8611 मीटर्स है. एंड कंचनजंगा हमारे इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और वर्ल्ड में यह तीसरे नंबर पर आती है जिसकी हाइट 8586 मीटर है. Now look northern east of the map. Here is Naga Hills and Mizo Hills. Naga Hills नागालैंड की पूर्वी सीमा पर स्थित हैं और इस पर्वत की हाईएस्ट पीक है सारामती जिसकी हाइट 3826 मीटर है. और मिजो हिल्स मिजोरम स्टेट में है जिनकी हाइट 2125 मीटर्स है. और ये हिल्स हमेशा सदाबहार जंगल से ढकी रहती हैं जिनमें बहुमूल्य टिम्बर और बांस के ट्रीज हैं. Now look, here is Nanda Devi Hills. It is the second highest mountain in India after Kanchenjunga. Its height is 7816 meters and it is situated in Chamoli, Uttarakhand. Look at the next para. The high peaks remain covered with snow all over the year. There is no vegetation or animal habitation over there. But high peaks have always challenged mountaineers. ऊंची चोटियां पूरे साल स्नो से कवर्ड रहती हैं. वहां पर ना कोई वेजिटेशन है और ना ही कोई एनिमल्स हैं. बट ऊंची चोटियां माउंटेनियर्स को हमेशा चुनौती देती हैं.
On May 29, 1953, two mountaineers Tenzing Norgay of India and Edmund Hillary of New Zealand climbed the highest mountain top Everest. 29 मई 1953 को भारत के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ये दोनों ही सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। द इंडियन ट्राइकलर वॉज प्राउडली होस्टेड ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉइंट। इन्होंने भारत के फ्लैग को वर्ल्ड के सबसे ऊंचे स्थान पर गर्व से फहराया था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैरा। हजार्ड्स ऑफ माउंटेनियरिंग मीन्स पर्वतारोहण के खतरे। Mountaineers need protection from severe cold and frost, but there is limit to how much baggage can be taken up. So the clothing has to be quilted and light. The air up on the mountains is rare. Breathing becomes difficult due to lack of oxygen. माउंटेनियर्स को कड़ाके की ठंड से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, बट इस बात की लिमिट होती है कि कितना सामान लिया जा सकता है, इसलिए उनके कपड़ों का वेट लाइट होना चाहिए। पहाड़ों पर हवा की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेना भी मुश्किल होता है पहाड़ों पर, इसलिए माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। पहाड़ों पर जो आइस होती है, जब उस पर सन रेज पड़ती है तब ये माउंटेनियर्स की आंखों को डैमेज कर सकती हैं, इसलिए माउंटेनियर्स को स्पेशल चश्मा पहनना पड़ता है। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। इंडियन वुमेन डिड नॉट लैग बिहाइंड इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एवरेस्ट। Bachendri Pal 1984 was the first Indian woman to have climbed the Everest. Many more teams have succeeded in climbing Everest. एवरेस्ट फतेह करने में इंडियन वुमन भी पीछे नहीं रही हैं। बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमन थी जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। कई और टीमों ने एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल की है। Besides posing a challenge to mountaineers, the high peaks are useful in many more ways. Huge blocks of ice from these mountain tops flow down as rivers of ice. They are known as glaciers. As these glaciers move into warmer regions, the snow melts. Mountaineers को चैलेंज करने के अलावा हाई पीक्स कई और तरीकों से भी यूजफुल है। बर्फ़ के ह्यूज ब्लॉक्स मीन्स बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं पर्वतों पर, वो बर्फ़ की नदियों के रूप में बहते हैं और उन्हें ग्लेशियर्स के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे ये गर्म एरिया में आते हैं तब बर्फ़ पिघलने लगती है। Rivers like the Ganga and the Yamuna originate from the glaciers Gangotri and Yamunotri. During the summer months, these rivers do not get dry. The melting snow feeds them with water. Melting snow also keeps other rivers like the Satluj and the Brahmaputra full of water during the summer months. गंगा और यमुना जैसी नदियाँ ग्लेशियर गंगोत्री और यमुनोत्री से निकली हैं। मीन्स गंगा गंगोत्री से ओरिजिनेट हुई है और यमुना यमुनोत्री से। समर सीजन में भी ये नदियाँ सूखती नहीं हैं क्योंकि बर्फ़ पिघलती रहती है और ये हमेशा वाटर से भरी रहती हैं। पिघलने वाली बर्फ़ अन्य नदियों जैसे सतलज और ब्रह्मपुत्र को भी गर्मी के महीनों में पानी से भरे रखती हैं। नेक्स्ट पैरा। द हिमाचल रेंजेज है ब्यूटीफुल हिल रिजॉर्ट्स श्रीनगर J&K, नैनीताल एंड मसूरी उत्तराखंड, डलहौजी एंड धर्मशाला हिमाचल प्रदेश एंड दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल आर विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट ड्यूरिंग द समर मंथ्स। श्रीनगर जो जम्मू एंड कश्मीर में है, नैनीताल और मसूरी जो उत्तराखंड में है, डलहौजी और धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है और दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में है, इन सभी प्लेसेस पर समर सीजन में हजारों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। नेक्स्ट पैरा। पैचेज ऑफ प्लेन लैंड्स बिटवीन द हिल्स आर कॉल्ड वैलीज। द वैलीज आर suited for cultivation of crops like apples, pears, plums and potatoes. The natural forest on Himachal ranges provide valuable wood and other forest produce. Pine and Devdar are the popular varieties of wood obtained from the forest. पहाड़ियों के बीच में जो प्लेन लैंड होती है उसे वैलीज कहा जाता है और ये वैलीज एप्पल्स, पियर्स, प्लम्स एंड पोटैटो जैसी फसलों के लिए अनुकूल होती हैं। हिमाचल पर्वत पर जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं वो हमें बहुमूल्य लकड़ी और अन्य वन उपज प्रदान करते हैं। पाइन और देवदार जो पॉपुलर वैरायटीज हैं लकड़ी की, वो हमें जंगलों से प्राप्त होती हैं। The Shivalik is the southernmost range of the Himalaya. The other ranges have been formed much
earlier. The average height of the Shivalik ranges is about 600 meters only. There are some broad valleys in between the Himachal and the Shivalik ranges, which are known by the name Dunes. Dehradun is one of them. शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। अन्य रेंजेस बहुत पहले ही फॉर्म्ड हो गई थी। शिवालिक पर्वतमाला की एवरेज हाइट ओनली 600 मीटर्स है। हिमाचल और शिवालिक पर्वतमाला के बीच में कुछ चौड़ी घाटियां हैं जिन्हें दून नाम से जाना जाता है। देहरादून उनमें से एक है जो उत्तराखंड की कैपिटल है। The Shivalik ranges are home for wide variety of wildlife. Very limited farming is done by people living in these areas. The farming is done on steppes, which is known as terrace farming. शिवालिक रेंजेज में कई प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं, वो ही उनका घर है। इस एरिया में रहने वाले लोगों द्वारा लिमिटेड फार्मिंग की जाती है और जो फार्मिंग यहाँ पर की जाती है उसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। यह पहाड़ों के ढलान और सीढ़ी पर की जाती है, इसलिए इसे सीढ़ी नुमा फार्मिंग भी कहा जाता है। लुक एट द पिक्चर। स्टूडेंट्स, जब आप कभी हिल एरिया में घूमने जाओगे तब आपको टेरेस फार्मिंग देखने को ज़रूर मिलेगी। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। द हिमालयाज हैव बीन अ बून टू अस इन मैनी वेज। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वेरी कोल्ड विंड्स दैट ब्लो इन द नॉर्थ, बट फॉर द हिमालयाज नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया वुड हैव बीन अ बैरन कोल्ड ड्राई डेजर्ट। हिमालय कई तरीकों से हमारे लिए एक वरदान है। वे नॉर्थ से जो ठंडी हवाएं आती है उनसे हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, बट हिमालय का उत्तरी भाग सूखा रेगिस्तान कहलाता है। द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ग्लेशियर्स ब्रिंग अलोंग विथ देम सॉफ्ट रॉक्स। एज द बिट्स रोल डाउन दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फर्टाइल सॉइल। एवरी ईयर एज द रिवर्स फ्लड द फर्टाइल सॉइल इज लेड अप ऑन द रिवर बैंक्स। ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां अपने साथ सॉफ्ट रॉक्स को लाती हैं और ये सॉफ्ट रॉक्स नीचे आते आते फर्टाइल सॉइल में बदल जाती हैं। इन एवरी ईयर जब नदियों में बाढ़ आती है तो नदी के किनारों पर ये उपजाऊ मिट्टी बिछ जाती है। लुक एट द लास्ट पैरा। द हिमालयाज वर एट वन टाइम आवर संतरी इन द नॉर्थ, बट दैट इज नो लॉन्गर ट्रू। देयर आर गैप्स कॉल्ड पासेज विद इन द हाई माउंटेन रेंजेस। In 327 BC, Alexander came all the way from Greece and entered India through the Khyber Pass. This pass joins Afghanistan to what is now Pakistan. In 1962, the Chinese forces attacked India using the Nathula Pass pass, joining Sikkim to Tibet. हिमालय उत्तर में एक समय हमारे संतरी हुआ करते थे, लेकिन यह अब सच नहीं है। हाई माउंटेन रेंजेज में गैप्स भी होता है जिसे पासेज कहा जाता है और जिसके थ्रू 327 BC में अलेक्जेंडर ग्रीस से भारत में आया था। उस पास का नाम है खाइबर पास। यह पास अफगानिस्तान से जुड़ता है जो अब पाकिस्तान है। 1962 में चीनी सेना ने सिक्किम से तिब्बत में शामिल होने वाले नाथुला पास का उपयोग कर इंडिया पर अटैक किया था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिमालयाज हमारे लिए कई तरह से बहुत अच्छे हैं तो कुछ नुकसानदायक भी हैं। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। हेयर इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज डैश इज द हाईएस्ट माउंटेन टॉप इन इंडिया। आंसर इज कंचनजंगा। नेक्स्ट, डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्लाइम्ड एवरेस्ट। आंसर इज बछेंद्री पाल। थर्ड वन इज Chinese invaded India through dash in 1962. Answer is Nathula. Next, Alexander came to India through the dash pass. Answer is Khyber. Last one is River Ganga originates from the glacier Gangotri. This is the answer, Gangotri. Next question is write true or false against the following sentences. First one is apple orchards are common in the Himadri ranges. False. Second, terrace farming is practiced in Shivalik ranges. True. Third one is Afghanistan is our neighbor in the north. True. 4. The east to west distance in India is more than the distance from north to south. False. Last one is glaciers are slow moving rivers of ice. True. This is the answer. True. Next question is write whether the following are glaciers, mountain peaks, hill stations or rivers.
First is Yamunotri glaciers. Second, Darjeeling hill station. Third, Brahmaputra river. Fourth, K2 mountain peaks. Fifth, Dharamshala hill station. Sixth, Yamuna river. Seventh, Mussoorie hill station. Last one is Gangotri glacier. So that was your all chapter. Hope you have understood. Thanks for watching. Have a good day.